the measurement of, take the measurement, divide both the quantities, we will get the density, or we can say purity of that iron cube. Relative density is nothing but a ratio. Then we can say it's a relative density of water भी हम इसी फॉर्मूला से फाइंड करेंगे. Hello everyone. So this is the last video of this chapter. Okay, so be focused, it will finish soon and we will start our next chapter. So the last topic, that is relative density. Okay, that is what? Relative density. So first of all we have to understand the meaning of density कि density क्या है, उसके बाद उसका type देखेंगे relative density. First of all, I have written the formula of density, and that is density equals to what? Mass per volume. Or if you want to write the definition, you can make it from the formula that density means the mass per unit volume. Unit volume. Why unit? Unit volume just because volume is in the denominator. Okay. So density means mass per volume. What is the SI unit of mass? That is kilogram, and volume, that is meter cube. Meter into meter into meter, that is meter cube. So the density, the unit of density, that is kg per meter cube. Okay. Now what is the need of density? To measure the purity. The need of the density is to measure the purity of any object. Okay. If I want to measure the purity of any iron cube. For example, there is an iron cube and I want to measure the purity, then I have to measure first the amount of iron, the mass of iron and the volume of iron in that block, and then I am dividing both the quantities. Whatever the answer will be, my purity of that particular iron cube. Okay. तो कई बार क्या होता है कि कोई ऑब्जेक्ट, कोई भी मटेरियल है, आप उसको लेते हो तो उसके अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज भी होती हैं. जैसे आयरन क्यूब है तो आयरन क्यूब के अंदर बहुत सारी आयरन के सिवा के भी बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जो कि उसके अंदर ऑलरेडी हैं. तो हमको अगर आयरन डेंसिटी चाहिए तो वो एक्स्ट्रा पार्टिकल्स को हटाना होगा. अब हम उसको पकड़ के हटा तो नहीं सकते. व्हाट वी शुड डू, वी जस्ट मेजर द अमाउंट ऑफ आयरन in that particular cube. So we have to do just the measurement of, take the measurement of mass in that particular iron cube, and we have to take the volume of that iron cube. We have to divide both the quantities, we will get the density, or we can say purity of that iron cube. That was an example. Okay, so this is all about density. Now let's come to the type of the density, and that is रिलेटिव डेंसिटी. ये हमारे रिलेटिव्स होते हैं, वो वाली नहीं है, इट्स अ टाइप ऑफ. ओके. सो रिलेटिव डेंसिटी क्या है? बहुत ही सिंपल है. आपको अगर ये याद रह गया तो ये भी रह जाएगा. अब पहले तो केजी पर मीटर क्यूब यूनिट याद रखिए. ओके. रिलेटिव डेंसिटी, व्हाट इट इज? रिलेटिव डेंसिटी इज नथिंग बट अ रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस एंड डेंसिटी ऑफ वाटर. ओके. मतलब रिलेटिव डेंसिटी का मतलब, रिलेटिव का मतलब किसी को रिलेट करना है उसके साथ. आपको आयरन का डेंसिटी चाहिए तो आयरन का डेंसिटी किसके रिलेशन में? वाटर के रिलेशन में. एयर का डेंसिटी चाहिए तो एयर की रिलेटिव डेंसिटी क्या होगी? तो आपको उसको वाटर की डेंसिटी के साथ रिलेट करना होगा. ठीक है. तो अगर आप एक चीज को दूसरे से रिलेट करते हो, देन वी कैन यूज द वर्ड रिलेटिव. ओके. एक चीज को दूसरी चीज से कंपेयर करते हो, रिलेट करते हो, देन वी कैन से इट्स अ रिलेटिव. ओके, इट्स अ रिलेशन. सो रिलेटिव डेंसिटी इज नथिंग बट डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस. इफ आई वांट टू फाइंड द डेंसिटी ऑफ अ वुडन क्यूब, देन आई वांट टू फाइंड द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वुडन क्यूब. व्हाट आई हैव टू डू, आई जस्ट हैव टू फाइंड द डेंसिटी ऑफ वुडन क्यूब सेपरेटली फर्स्ट. मेरे को वुडन क्यूब का डेंसिटी अलग से फाइंड करना होगा ऊपर. उसके बाद उसका रेशियो लेना है किसके साथ? डेंसिटी ऑफ वाटर के साथ. ओके. डेंसिटी ऑफ वाटर के साथ उसका रेशियो लेना है. इफ आई एम टेकिंग द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस to the density of water, then I will get the relative density.
Okay, what I will get? I will get the relative density. Now, what is the unit of relative density? Okay, let's find it out. ध्यान रखना इधर कि रिलेटिव डेंसिटी का आपको यूनिट फाइंड करना है, क्या कर सकते हो? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, मतलब हम इधर से फाइंड करेंगे तो ऊपर का यूनिट क्या आएगा न्यूमरेटर का, केजी पर मीटर क्यूब। डिनोमिनेटर में डेंसिटी ऑफ वाटर, अगेन डेंसिटी है तो डेंसिटी ऑफ वाटर भी हम इसी फॉर्मूला से फाइंड करेंगे, उसका भी यूनिट क्या आएगा केजी पर मीटर क्यूब। ओके, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, आई कैन कट इट आउट, द वैल्यू इज 1. इट मींस रिलेटिव डेंसिटी हैज नो यूनिट। ओके, रिलेटिव डेंसिटी का कोई यूनिट नहीं है, उसकी सिर्फ वैल्यू होगी, इट इज यूनिटलेस। रिलेटिव डेंसिटी इज यूनिटलेस, ठीक है। तो अगर आपके 1 मार्क क्वेश्चन में एमसीक्यूज में कहीं पे आता है व्हाट इज द यूनिट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर ऑफ एनीथिंग, देन यू हैव टू चूज द आंसर इट इज यूनिटलेस। ओके, क्यों यूनिटलेस? बिकॉज उसके फॉर्मूला में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में सेम क्वांटिटी है, तो दोनों के यूनिट कट आउट हो जाते हैं और बचता है 1, दैट्स व्हाई इट इज यूनिटलेस, ठीक है। तो लेट्स अंडरस्टैंड one numerical based on this formula. What is the first step? Okay, that is read the question carefully. Relative density of silver is 10.8. Silver metal है, उसका relative density दिया गया है 10.8. देखो 10.8 is what? Relative density, और 10.8 कोई यूनिट लिखा हुआ नहीं है. Why? It is unitless. The density of water, that is 10⁻³ kg per meter cube. वाटर का डेंसिटी दिया हुआ है 10.10⁻³ kg per meter cube. व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ सिल्वर इन एसआई यूनिट? फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले तो हमको रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला लिखना होगा। क्या करते हैं? रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ सिल्वर to the density of water. Okay, density of silver to the density of water. We have to take just the ratio of relative density of silver. We already have it. That is equals to 10.8, and density of silver we have to found density of silver, or density of water is what? That is given as 10⁻³. तो हमको अगर डेंसिटी ऑफ सिल्वर चाहिए, क्या करना है? सिंपल, दैट इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ सिल्वर, दैट इज इक्वल्स टू 10.8 into 10⁻³ kg per meter cube. This is the answer, 10.8 into 10⁻³ kg per meter cube. It's so easy. Okay, आप आराम से कर सकते हो। जस्ट आपको याद रखना है कंसेप्ट ऑफ डेंसिटी एंड कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी। किसके साथ रिलेट करना है? डेंसिटी ऑफ वाटर के साथ। इट्स अ सिंपल थिंग। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये पूरा जो चैप्टर है ग्रेविटेशन इस वीडियो में कंप्लीट हो रहा है। ओके, मेरे को कमेंट में बताओ कि ये वीडियो लेक्चर का सीरीज आपको कैसा लगा, ठीक है। और ग्रेविटेशन के रिलेटेड कोई एक्स्ट्रा नॉलेज आपके पास है, you can share it with me. Okay, you can connect with me on different social media links. I have given it in the description. Okay, अलग अलग जगह पे आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो। और अगर कोई एक्स्ट्रा चीज़ है आपको मेरे को बोलना है, शेयर करना है, you can share it in comment section और you can message me in that social media platforms. ठीक है, तो मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में with a new chapter and new concept, new knowledge, new talks. Okay, up to that, see you soon. Take care.